يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخر صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، پاک پروردگار ہے۔ درود و سلام نازل ہو سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جو ہم سب کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سب لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت ہم اور آپ 2 رکعت نماز شکرانہ کے لیے ایک کھلے آسمان کے نیچے آبادی اور گاؤں سے نکل کر کے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یہ خوشیوں کا دن بار بار لائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی میں یہ خوشیاں بار بار نصیب کرے۔ آئیے اس موقع پر ہم اور آپ یاد کرتے ہیں کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 2 عبادت، ایک عبادت تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جنہیں توفیق دی اور جنہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کیا، آج وہ دنیا سے اور پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے ایک لباس کے اندر ایک طرح کے کپڑے پہن کر کے اور ایک بولی لگا رہے ہیں، اور وہ رب کے دربار میں جا کر کے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ یعنی جو آج حج کے لیے گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حاجیوں کے حج کو حج مبرور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دربار اور اس بیت اللہ کی زیارت اور روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک عبادت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں حج کیا جائے، دوسری اور اہم عبادت یہ ہے کہ قربانی کی جائے۔ لوگوں، ہم سب کے لیے نمونہ ہے سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ ما ہادہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ اے لوگوں، اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کن مشکلات سے گزرے ہیں ان کو پڑھیے، اور ان کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیجئے کہ اللہ کے ایک نیک بندوں کو جب اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ حضرت ابراہیم کی پیدائش آپ جانتے ہوں گے کہ عراق میں ہوئی، پھر اس وقت جب کہ انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، تو لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا اور انہیں اپنے گھر سے نکالا۔ وہ نکل کر کے چلے گئے فلسطین، وہاں جمع ہوئے، لیکن وہ وقت جب کہ بڑھاپے کے عمر میں ان کو بچہ ہوا، اولاد ہوئی، پھر حکم ہوا کہ تجھے اس کو بھی چھوڑنا ہے، اور اس سے پہلے آگ میں بھی ڈالا گیا، اور پھر اس وقت اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو لے کر کے اس شہر کو چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ جانے کا حکم ہوا جہاں کوئی آبادی نہیں ٹھیک سے، جہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں۔ قرآن نے اسے کہا وادی غیر ذی زرع ہے یہ،
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से लाडले को और अपनी बीवी को मक्के की भी उस आबो गयाह वादी में छोड़ करके निकल गए। फिर वो वक्त भी आया कि एक मौके पर उस बेटे को कुर्बान करने का ख्वाब में दिखाया और बेटे और बाप ने ये तैयारी कर ली कि हाँ अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना है। तो फिर इन कठिनाइयों और इन मुश्किलात के बाद अल्लाह ताला ने उनकी यादगार को आज तक बाकी रखा और रहती दुनिया तक ये है कि ये अपने इब्राहिम जो हम सब के बाबा हैं, हम उनकी सुन्नत को आज ताज़ा कर रहे हैं। ऐ लोगों, इस मौके पर आप जब कुर्बानी कर रहे हो तो वो जो दुआ पढ़ी जाती है कुर्बानी पर, हम चाहेंगे कि उसका तर्जमा आप जरूर सुन लीजिए। ये सिर्फ ये नहीं कि ये कुर्बानी ये है कि जानवर को ज़बह कर लिया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उस वक्त ये हुक्म देते हैं कि सुनो, जब तक कुर्बानी कर रहे होते हो तो उस वक्त ये पढ़ो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरी नमाज, ये मेरी इबादत, ये मेरी जिंदगी, ये मेरी मौत सब अल्लाह ताला के लिए है। उस वक्त तुम ये अहद करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे अल्लाह के राह में कुर्बान होना है, कुछ नहीं है, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई है, हम उसी अल्लाह कर रहे हैं। सुनो, और उस वक्त यही नहीं बल्कि उस वक्त ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कि हम अल्लाह के नाम से, जो अल्लाह बड़ा है, उसी के नाम से ज़बह कर रहे हैं। ऐ लोगों, उस वक्त हमें यह भी कहा जाता है कि आप कुर्बानी के वक्त इन आयतों का मुताला कीजिए जिसमें अल्लाह ने कहा है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कि सुनो, अल्लाह को न इसका गोश्त पहुंचता है और न इसका खून पहुंचता है। फिर क्या पहुंचता है लोगों? एक तरफ तो ये है कि तंदुरुस्त और तवाना और बेहतरीन जानवर ज़बह किया जाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुर्बानी के दिनों में इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि अल्लाह के रास्ते में खून बहाया जाए। फिर क्या पहुंचता है? अल्लाह ने अपने इस आयत के अंदर कहा कि तुम्हारे दिल का तकवा और डर पहुंचता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह से डरें, अल्लाह से खौफ करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात वो ये है कि कुर्बानी किन के लिए करना जरूरी है। मेरे पास अनगिनत लोग सुबह से लेकर के शाम तक 2-4 दिनों से फोन करते हैं। लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं कि इस साल अगर मैंने कुर्बानी कर ली तो आइंदा साल, पिछले साल मैंने अपने नाम से की तो इस साल अपनी बीवी के नाम से कर लें। हमने इस साल अगर अपने नाम से की है तो एक साल अपने अब्बा जो मर गए हैं उनके नाम से कर लें। मैं आपको चाहता हूं कि आप ये मसला जान लीजिए। कुर्बानी हर उस आदमी पर वाजिब है जो आज के दिन 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक हुई है, उस वक्त से लेकर के 12 जिलहिज के असर तक वो मुसलमान हो। हम मुसलमान हैं, वो बालिग हो, नाबालिग पर नहीं है। वो मुसाफिर ना हो बल्कि मुकीम हो, अपने घर में हो। अगर हम किसी वजह से सफर में हैं तो फिर हम पर कुर्बानी नहीं है। आप कर लें तो बहुत अच्छा, लेकिन हम यहाँ हो तो एक तो ये है कि मुसलमान हो, बालिग हो, अपने घर में हो, साहब निसाब हो। साहब निसाब का क्या मतलब है? 612 ग्राम 365 मिलीग्राम चांदी, इतनी मालियत का वो मालिक हो। ये कोई जरूरी नहीं है चांदी, इतनी की जो कीमत होगी उसके पास कोई भी सामान हो, खाने पीने पहनने, सवारी अगर वो उसकी जरूरत की है तो उसे छोड़ करके, इसके अलावा अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास कोई सामान है जिसकी कीमत इतनी को पहुंच जाएगी, या उसके पास सोने और चांदी में से कुछ है कि इतनी कीमत पहुंच जाए, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब मुझे खुद फैसला करना है कि अगर आपके पास इतना है तो आप पर कुर्बानी वाजिब, अगर आपकी बीवी के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब, अगर आपके बच्चों पर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब। हर आदमी पर अलग अलग है। ये नहीं कि खानदान और घर के एक लोगों की तरफ से कर लेंगे तो पूरे की तरफ से काफी हो जाएगा। अगर कोई आदमी वुसअत के बावजूद, हैसियत के बावजूद कुर्बानी नहीं किया तो फिर क्या है? मैं नहीं कहता बल्कि हम सब के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, मन कान लहु साअतन वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। सुनो,
کہ एक आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, वसत है उसके पास कुर्बानी करने की, और फिर उसने कुर्बानी नहीं की, तो ऐसा आदमी हमारी ईदगाह को नमाज पढ़ने न आए। अल्लाह के रसूल ने धमकी दी और कहा कि सुनो, मुतनब्बे हो जाओ, अगर तुम्हारे पास कुर्बानी की हैसियत थी और तुमने कुर्बानी नहीं की तो तुम आज ईदगाह क्यों आ गए हो। इसलिए हमको और आपको अपना टटोलना चाहिए और अपनी हैसियत देखनी चाहिए कि अगर कुर्बानी है वाजिब तो जरूर कुर्बानी कीजिए। अल्लाह हमें भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। ऐ लोगों, इस वक्त कुर्बानी जरूर किया जाए, लेकिन कुर्बानी करते वक्त हम इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कुर्बानी के ऐसी पोस्टें, कुर्बानी की ऐसी तस्वीरें जिससे मुल्क के हालात को खराब हो, बिरादरान वतन को तकलीफ हो, ऐसी चीज हरगिज आप शेयर न कीजिए। ऐसी चीजों को हरगिज मोबाइल पर न डालिए। आप अगर कुर्बानी कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह गोश्त और ऐसी चीजें ले जा रहे हो, रास्ते में दूसरों का ख्याल जरूर रखिए। हमारे मुल्क के हालात इस वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम कोई ऐसा काम करें कि हमारे गांव का माहौल खराब हो। मैं आपको इस मौके पर जरूर इसकी ताकीद करूंगा। ऐ लोगों, आपको मैं ये भी कहूंगा कि ये जो दिन है ये अय्याम तशरीक के हैं। कल 9वीं जिलहिज्जा से लेकर के 13 की असर तक आप हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। ऐ लोगों, मैं आपसे एक आखिरी बात कह रहा हूँ, और वो बात ये है कि इस वक्त ये बात कहने की नहीं है। हम में का हर आदमी जान रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मना रहे हैं। कपड़े हर आदमी ने अपनी हैसियत से अच्छे पहने हैं, खाना हर आदमी को अच्छा नसीब है। लेकिन अगर आपके सीने में दिल है और दर्द है, अगर आपका दिल भी धड़कता है और अगर आपका दिल भी रोता है, तो आप उन पोस्टों को, उन तस्वीरों को, उन वीडियो को आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मासूम है, उनको खाने के लिए कोई सामान नहीं मिल रहा है। मैंने तस्वीरें देखी कि इन घास और ऐसी चीजों को उबाल करके वो अपने पेट को पाल रहे हैं। मैंने वो तस्वीरें देखी कि दुनिया इस वक्त बड़ी खुशियों से ईद मना रही है, लेकिन वो पहाड़ों के और गिरे हुए मलबों के नीचे बैठ करके अल्लाहु अकबर कह रहा है छोटा छोटा बच्चा। आज उन माओं की एक नहीं 4 औलादें खत्म हो गई। आज उनके हुक्मरानों की औलादें चली गई, लेकिन उसने ऐलान किया कि जैसे एक रियाया की खून है, ऐसी मेरे बेटा की भी खून है। अगर 100 बेटा भी हो तो हम उस बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए हम अपने बेटे को कुर्बान करते हैं। हम तबसरे जरूर करते हैं, हम इजहार अफसोस जरूर करते हैं, लेकिन हम आपसे इस वक्त हाथ जोड़ करके कहेंगे कि दिन और रात में कम से कम 1 से 2 मिनट उन भाइयों के लिए, फिलिस्तीनी भाइयों के लिए आप जरूर निकालिए। हम नहीं कहते कि आप उनकी क्या मदद करेंगे, हम ये भी नहीं कहते कि आप रुपया और पैसा जमा करके भेजिए, नहीं, मैं नहीं कहता आपको, लेकिन हाँ, हम उस रब्बुल आलमीन के सामने उनके लिए दुआ करें। ऐ लोगों, उम्मत का इस वक्त हर मुसलमान अगर सिर्फ 2 मिनट 2 रकत नमाज पढ़ करके या जो नमाज पढ़ता है उसी वक्त सिर्फ उनके लिए दुआ कर दे, यकीनन अल्लाह उनके लिए हालात को बदल देगा। और इससे ये सबक सीखिए कि आज जो ये दिन हमारे लिए है, ये अच्छे दिन है। हम इस वक्त खुशी का इजहार करें तो उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने जिस हाल में मुझे रखा है, हम इस पर आपका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हमें हर तरह की नेमतों से मालामाल फरमाइए। आइए, इस मौके पर हम आपसे ये भी कहेंगे कि इस वक्त कुर्बानी ऐसे वक्त में हो रही है कि जबकि मदारिस के लिए और मकातिब के लिए और ऐसे दारूम के लिए जहां हम अपनी कुर्बानी का चमड़ा देते थे, इस वक्त उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए इस वक्त अक्सर ऐसा हो रहा है, कोई मदरसे वाले इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको जमा कर करके उसको बेचने के बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं होता। इसकी 2 सूरत है। एक सूरत तो ये है कि हम खुद अपनी ये कोशिश करें कि हम खुद से जहां आपका दिल चाहे, आपके गांव में भी इदारा है, आप वहां पहुंचा दें और खुद ऐसी चीजों को ऐसी जगह रख दें कि कहीं बदबू ना हो और किसी को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए हमारी भी आपसे गुजारिश होगी कि इधर उधर फेंकने के बजाय आप मदरसे में पहुंचाएं, या कोई भी ऐसा आदमी आता है जो वसूल करे तो आप उसे दे दीजिए। इधर उधर न फेंकिए ऐसी चीजों को। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला
हमारे मुल्क में अमन की फ़िज़ा कायम रखे, यहाँ के हालात को बदल दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुर्बानी का जो असल मकसद है कि दिलों में तकवा पैदा हो जाए, वो पैदा हो, हम इसकी दुआ करते हैं। मुतय्यना वक्त जो है वो 7 बजे का वक्त मुकर्रर था कि 7 बजे नमाज हो जाएगी। वक्त बिल्कुल हो चुका है, 1-8 मिनट या कुछ सेकंड बाकी हो। इस मौके पर हम फिर उस चीज़ की तजदीद कर लें कि नमाज ईद उल उज़हिया या नमाज ईद उल फित्र कैसे पढ़ी जाती है। आप जानते हैं कि ये 2 रकत नमाज है। इस 2 रकत नमाज के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। 6 ज़ायद तकबीर यानी ज़ायद का मतलब है कि हर नमाज में से ज़्यादा इसमें 6 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाएगा। 3 मरतबा तो पहली रकत के अंदर जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो ये तकबीर तहरीमा है। आप हाथ उठा करके हाथ को बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे। सना के बाद 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाएगा। पहले 2 में हाथ को गिरा लेंगे और तीसरी मरतबा में हाथ को फिर बांध लेंगे। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा, सूरा, रुकू, सजदा, फिर दूसरी रकत के लिए उठेंगे, फिर वो सूरह फातिहा और कोई आयत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 4 तकबीर होगी। पहली जो 3 तकबीर होगी वो तकबीर ज़ायद होगी और इस तकबीर के अंदर ये है कि 3 मरतबा हाथ उठा करके गिरा लेंगे, चौथी मरतबा हाथ को उठाएंगे नहीं, ये रुकू की तकबीर होगी और इस तरीके से नमाज अदा हो जाएगी। हम नमाज के बाद दुआ करें, मौसम ठीक है इस वक्त, ज़रूर दुआ करें और फिर जो खुतबा दिया जाएगा उस खुतबे को सुने। और उस खुतबे में क्या पैगाम है? उस खुतबे में यही पैगाम है जो हमने आपके सामने उर्दू में किया कि हज है, कुर्बानी है और कुर्बानी के ताल्लुक से जो चीज़ें हैं मैंने उसको बयान कर दिया। इसी को अरबी में कहा जाएगा। आप इसको सुनिए और सुन करके फिर अपने अपने घरों में जाकर के कुर्बानी कीजिए। अगर आपको इस मौके पर किसी से बगलगीर होना है, मुआनका करना है, मुसाफा करना है, ज़रूर चलते हुए मिलते हुए ज़रूर कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जिससे ज़िंदगी में कभी किसी को कोई तकलीफ़ हो, नागवार हो, आज उसको ख़त्म कीजिए, उनसे गले मिल कर के दूर कीजिए। आपस की मोहब्बत मवद्दत को बाकी रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत सलामती अता फरमाए और ज़िंदगी में बार बार लाए। हमारे वो लोग जो कल तक हमारी मस्जिद यहाँ आते थे नमाज पढ़ने के लिए, इस दुनिया से जा चुके, हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हमारे वो भाई जो बीमार है उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती आफियत नसीब फरमाए। वक्त हो चुका है, खड़े होइए, सफ़ों को सीधी कर लीजिए और नमाज जो है शुरू हो जाएगी।